an inner journey which we all have to go through and which is very, very important. जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर यात्रा. So in today's modern world, everybody is running, which I simply say a rat race. Everybody is running for something which they are not even aware of. एक जो भागदौड़ की जिंदगी है, उसमें आदमी अपने आप से छूटा जा रहा है. And because of this, there is a forgetfulness. What is forgetfulness? Forgetfulness of our own being. अपनी एक विस्मृति हो गई है. Now the question comes, what is spirituality? Or if I make it simple, what is to be spiritual? We all have certain kind of beliefs and myths that a spiritual person is like this, a spiritual being is like this, but in reality, there is a certain ritual which we all spirit follows. We all are spirit, and there is a ritual for our spirit. And what is the ritual? To connect with yourself. And to follow a simple ritual is the total message of being spiritual. And the moment you connect with yourself, you find yourself. So if I make it very simple, there is a disconnection. Disconnection from the reality. Disconnection from your own being. And because of this, there is so much hustle and bustle. You know why most of the startups fail? You may think that because of funding, because of manpower, because of many other reasons related to money, but no. In reality, most of the startups fail because of hustle and bustle. They try to reach to a success, और एक छोटी सी सीढ़ी बनाकर हर आदमी बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहता है. I simply say, avoid shortcuts. यह हिंदी फिल्मों में दिखाई देता है कि बहुत जल्दी आदमी रईस बन गया, but in reality, there are no shortcuts in life. You have to take the move very gently. It is perfectly okay if you are not achieving too much what you have expected in your life. But a small bit, a small little effort can make a big difference in your life. So I'm here to talk about what to do with this spiritual thing. That is, the more you connected with yourself, you will find inner richness in yourself. And that inner richness won't be limited. And it is very natural. जो हमारे अंदर की जो एक झलक है, जो एक खुशी है, जो एक आनंद का स्तोत्र यदि मैं कहूं, उसको आप केवल अपने तक सीमित नहीं रख सकते. It is bound to be spread, which I say Midas touch. And the more you are connected with that Midas touch, you will share that fragrance with each and every one, whomsoever will come in contact with you. And it is a very natural flow. And that is what I say abundance. Abundance can only flow when you are deeply connected with yourself. And now I am going to make a very powerful statement. Be a businessman, but don't let the business enter into you. Don't worry, बिल्कुल घबराएं नहीं. मैं इसको और गहराई में आप लोगों को समझाना चाहता हूं, और मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस बात को. Be a businessman, but don't let the business enter into you. What does it mean? It simply means that just be a businessman, and from inside, don't let the business enter into you. Because the moment the business will enter into you, you will become very cunning, you will become very coward, and that cunningness will never let you be a good businessman. Now the question comes, what is something which has to enter within you? So I simply say, let the meditation enter into you. And the more meditative you become,
the more wakeful you become, your whole being becomes very, very positive. And that golden aura which you carry, the persona which you carry with you, that makes you a good entrepreneur. People think that if you are very clever, if you are very sharp, you are intelligent. But actually it is not. The real intelligence flows when your whole being is surrounded by meditation, when your whole being is surrounded by positivity. And for that, a connectedness is required. एक बहुत सुंदर कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। एक नदी के किनारे एक मछुआरा अपनी नाव में था और वो शानदार एक पाइप अपने हाथ में लिए पाइप पी रहा था। दूसरे मछुआरे ने जब उसे देखा तो उसने कहा कि तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये समय है मछलियां पकड़ने का। तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है, क्या करूंगा मैं इतना कुछ करके। तो मछुआरा कहता है कि तुम एक नाव खरीद सकते हो, उसमें मोटर लगा सकते हो जो कि और गहराई तक जाएगी और वहां से तुम और ज्यादा मछलियां पकड़ सकते हो। उसने कहा फिर उससे क्या होगा। उसने कहा फिर तुम एक बोट से 10 बोट कर सकते हो, फिर और तुम्हारा व्यापार हो जाएगा। तो उसने कहा फिर उससे क्या होगा। उसने कहा फिर तुम मौज कर सकते हो। तो उसने कहा मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी क्या कर रहा हूं, ये भी तो मौज ही है जो मैं कर रहा हूं। दिस एटीट्यूड आई सिंपली से is a Buddha's attitude, and this Buddha is not an escapist. This Buddha, I say, the Buddha in the marketplace. A Buddha, when comes in the marketplace, it makes the entire market Buddhahood. Whether you are a carpenter, whether you are entrepreneur, whether you are in any profession, doctor, engineer, whatsoever you are, if your being is Buddha, if your being is the true reality, which I simply say a wakefulness, a wakeful leader, if you are a wakeful leader, then wherever you will go, you will share that spark, the golden spark which you carry within. And this gives you not only the left part of your brain, because the left part of your brain is very logical. Till now, what we have experienced is that we have to think everything logically. It is perfectly okay to think everything logically. ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर चीज का एक निष्कर्ष निकालें, निचोड़ निकालें और हर चीज को एक गहराई से समझें. But the most important thing is never miss the right part of your brain, which is the most important part. And this gives you the phenomena, the experience of whole brain thinking. You know who are the good leaders? Who are not only focusing on their left brain, but continuously practicing how can I leverage my right brain, which further gives you the experience of whole brain thinking. कल रघुनाथ माशेलकर जी हमारे बीच थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलने का इंतजार ना करें, आप उसको क्रिएट करें। मैं एक बहुत सिंपल बात और कहना चाहता हूं। You need not to create the door. The door is right here in front of you. In fact, the door is within you. A little effort, a little wakefulness is required. You just have to see within, and you will find the door was waiting for you. You simply have to knock, and the person who is sitting inside will open the door. And that is the door of abundance. And for that, you need surrender. हिंदी में एक बहुत सुंदर शब्द है समर्पण। जब सब चीजें हमारे अनुकूल ना हो रही हो, when things are not going according to you, that is the time when you have to leave things. क्योंकि हर चीज का आप एक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अटक जाते हैं। It happens. It is very natural. उस टाइम पे एक समर्पण की आवश्यकता होती है। Surrender is very important. And that surrender can give you a tremendous opportunity. And from there, the very possibility of life appears in front of you. और वहां से जो एक नया दरवाजा खुलता है, वो खुलता है डोर ऑफ अबंडेंस। और मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी जिसमें मैंने कहा है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधम। आज मैं एक बहुत सुंदर बात आप लोगों को और बताना चाहता हूं जो उसके आगे की यात्रा है। वो ये है कि
कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? आप सब मेरे पीछे दोहराएं। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो आई इनवाइट यू कि एक पत्थर उछालें और छेद कर दें उस आसमान में जो इंतजार करता है, जो प्रतीक्षा करता है आपकी, और बिगुल बजाएं, एक नया उद्घोष करें जो कि संपूर्ण संसार के अंदर आपकी ख्याति पैदा हो, एक रेवोल्यूशन लेके आए। जस्ट ब्रिंग द रेवोल्यूशन, यू आर द रेवोल्यूशनरी, एंड दैट पावर, दैट पोटेंशियल इज विद इन यू. अ लिटिल स्पार्क इज नीडेड, एंड आई एम हियर टू गिव यू दैट स्पार्क. जस्ट बर्न द होल फॉरेस्ट. नाउ यू आर फुल ऑफ फायर. थैंक यू. Thank you so much, Shri Shivanji. Big round of applause for him. You shared some great insight. You shared about startup failures, right? And you said it wasn't the funding, it wasn't the strategy, it was the hustle and bustle. Talking about focus, clarity, concentration, inner calmness. And yet, none of those are actually ever taught in school or college. So important to go deep within, introspect, understand, reflect, and then go on, right? And the other thing which I found very intriguing when you spoke about specifically around the Machkara story, right? My takeaway from that story was, how can you be content and yet give your 100%, right? Typically, entrepreneurs say you have to be aggressive. How can you be content, right? So my question to you is, how can you have that contentment inside and yet have that aggressive, do what it takes approach outside? How can one achieve that? आपका जो प्रश्न है उसको मैं बहुत आसान शब्दों में यदि मैं कहूं तो उसका उत्तर है अंतर की स्थिरता बाहर की विराटता को जन्म देती है. नाउ आई मेक इट सिंपल. द इनर स्टिलनेस यू हैव, इट गिव्स बर्थ टू द अबंडेंस in the outside world. The more resilient you are, the more calm you are within, the more you can expand that inner richness in the outer world. People say become aggressive, become aggressive. I never say become aggressive. I simply say become progressive. And the more progressive you become, your life will flow. मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, they are big tycoons of this country. जब उन लोगों से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि रात को मुझे नींद नहीं आती. And then when I ask कि what is the reason behind it, तो वो कहते हैं कि there is so much aggression within me. तो मैंने कुछ उनको छोटी छोटी बातें बताई जो मैं आज यहाँ पर आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहूँगा. जो भी आप अपने ऑफिस में हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, whatever you are in your office, just leave that in your office. जब आप घर पे आए तो एक साधारण आदमी बन के आए. Become very simple person. And the more simple you are, that simplicity can actually make you feel more resilient, more calmer, and a good human being. Because first of all, whether we are big entrepreneurs, whether we are in any area of our life doing very good, unless you become a good human being, you cannot achieve anything. And for that, you have to experience your true self, which is within. आपने बाहर जाकर कितनी भी मीनारें बना ली, कितने भी आपने बड़ी बड़ी यात्राएं कर ली, बहुत कुछ आपने अपने जीवन में पा लिया, लेकिन जो एक छोटा बच्चा आपके अंदर है, द वेरी इनोसेंट चाइल्ड विच इज इनसाइड यू, अगर आपने कुछ गुफ्तगू उसके साथ नहीं की तो मैं मानता हूं हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया. और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं
जिन्होंने अपने डेथ बेड पर बहुत रिग्रेट किया है, व्हेन दे वर डाइंग, तो उनकी जो बिगेस्ट वरी थी वो ये थी, अगर आप उनसे पूछें, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मैंने अनुभव किया है। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि आई कुडंट लिव माई लाइफ फुल्ली, मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी नहीं पाया, क्योंकि आई वॉज सो एनग्रॉस्ड, आई वॉज सो बिजी इन मेकिंग अदर्स हैप्पी, इन मेकिंग माई लाइफ फुलफिल्ड, विच अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट डू, वो संभव नहीं है। तो ये रिग्रेट के साथ मैं चाहूंगा कि हम कभी भी ना मरे। अगर हम मरे तो उस समय ऐसा हो कि हम वेलकम कर रहे हो डेथ को, एंड लेट डेथ बी द सेलिब्रेशन एट द टाइम व्हेन यू डाई, एंड फॉर दैट यू हैव टू लिव इन अ सेलिब्रेटरी वे, एंड वन हु लिव्स इन अ सेलिब्रेटरी वे इज लिविंग एवरी मोमेंट। जो ये क्षण मिला है हमको, चाहे इस क्षण में भी अगर हम बैठे हैं, तो इस क्षण का पूरा जो निचोड़ है, पूरा रस अगर हम पी लेते हैं, which I say simply the nectar of life, that I say is the reality, that I say is the godliness. That is wonderful. So my takeaway from this answer was, how do you drop all your labels? Go back home and drop all the labels, whether it's a manager, a CEO, a Fortune 500 company, entrepreneur, right? But how does one bring all of this into practice? Can you share one or two very simple techniques on how spiritual entrepreneurship is no more a paradox, but something which comes to you effortlessly and seamlessly? See, first of all, to get the labels, an effort is required. To drop the labels, there is no effort required. एक बहुत सुंदर बात है हिंदी में कि अति कर्मठता बाधा बन जाती है हमारे जीवन में। अति कर्मठता का अर्थ है कि when we are doing a lot of things, putting a lot of efforts, that becomes the barrier in our life. लेकिन मनुष्य के साथ क्या है कि we all are very much capable of putting lot of efforts in everything, and we tend to lose what is very simple in our life. So that very simplicity is available within us. और आप बात करते हैं टेक्निक्स की, so there are very general fundamental reflective inquiries जिसे हम कहते हैं कि आत्मनिग्रह। जब आप रात को सोएं उस समय एक आत्मनिग्रह करें, just do an introspection. Who am I? What am I doing? What is the purpose of my life? Am I doing good with myself? Am I doing good with others? How can I benefit to the society? How can I benefit to myself? These are few reflective inquiries. और अगर हम इन reflective inquiries को, अगर हम इस आत्मनिग्रह को बहुत गहराई से समझ लें, तो मैं मानता हूं कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ सकता है. There is a transformational shift waiting for you. But for that, reflective inquiries are very, very important. That gives birth to a new horizon. एक नया क्षितिज हमारे समक्ष सामने खड़ा हो जाता है. लेकिन उसे अनुभव करने के लिए एक आंखें चाहिए. और ये दो आंखें जो प्रकृति ने हमें दी हैं, ये बहुत सुंदर बात है. ये बाह्य जगत को देखने के लिए बहुत सुंदर है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं इन दो आंखों से नहीं देखी जाती. और दो प्रकार की बातें होती हैं, मैं आप लोगों को बताऊं. वन इज बाह्यमुखी एंड वन इज भीतरमुखी, विच आई से अंतर्मुखी. बाह्यमुखी देखने के लिए बाह्य आंखों की आवश्यकता होती है, द आउटर आइज विच वी हैव. और अंतर्मुखी देखने के लिए इनर आइज की जरूरत होती है. एंड फॉर दैट यू हैव टू गो विद इन. वहां से जो एक विजन आता है. कल भावेश अग्रवाल भी यहां पर थे, उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई. उन्होंने कहा कि आईआईटी करने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए माइक्रोसॉफ्ट में था और उनकी लकीली जॉब ऐसी मिल गई उनको कि वहां पर वो एक रिसर्च करने लगे. साल डेढ़ साल उन्होंने रिसर्च किया, कुछ काम नहीं किया, बस रिसर्च किया. और वहां से उनको आइडिया आया कि ओला खोलते हैं. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. डॉक्टर अपने रघुनाथ कल वहां पर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई. उन्होंने जो 5 पॉइंट्स बताए, 5 मंत्रास, उसके अंदर उन्होंने बताया
कि कैसे कैसे अपने जीवन में आप ट्रांसफॉर्म लेके आ सकते हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गोइंग टू से इज कि आप जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस यात्रा से गुजरे हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो। इनके पीछे की जो एक साइंस है, विच आई से साइंस बियॉन्ड साइंस। टिल नाउ व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस साइंस इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बट ये साइंस ऐसी है विच इज बियॉन्ड दीज बुक्स। फॉर नॉलेज you have to read books. For intelligence, the real intelligence, you have to go deeper with them. For example, sir mentioned that we have to open the doors inside us, within us. So how we have to look at the doors, identify that door, and go to that door. रौनक, राइट? रौनक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। And yesterday, Ronak, when I got to know about you, when Dr. Ganesh Natarajan gave a beautiful introduction of yours, and it's a wonderful question you asked. क्या होता है रौनक, जब घर में नया नया वाईफाई लगा होता है तो जो इंस्टॉल करने आता है उससे हम पूछते हैं इसका पासवर्ड क्या है, राइट? और वो बहुत कुछ करता है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज करता है, आपको समझ नहीं आता है क्या बोल रहा है, और फिर अल्टीमेटली पासवर्ड आपके पास आ जाता है। ये दूसरी दुनिया की जो बातें हैं जो हमने आज की है, ये एक्चुअली बात हमारी है, बट इट साउंड्स वेरी अनफेमिलियर बिकॉज हमें इसके बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं है। और ये जो नॉलेज है, जैसा कि मैंने जब मैं बोल रहा था उस टाइम पे मैंने बताया कि कुछ नॉलेज ऐसी है जो आपको बुक्स पढ़ने से नहीं आती, कुछ नॉलेज ऐसी है जो एक नॉलेज के भी बियॉन्ड होती है, विच आई सिंपली से विजडम। तो जो विजडम होती है दैट यू हैव टू डीकोड। इट इज लाइक अ वाईफाई पासवर्ड, वंस इट इज इन योर हैंड तब दबा के जितनी जीबी यूज करनी है करो, लेकिन उसको डीकोड करना जो है दैट इज एन आर्ट। और वो जो एक आर्ट है, अगर आपने वो सीख ली तो आपको व्हाई, व्हाट, हाउ और फ्यूचर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। इट इज नॉट कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अनआंसर्ड होते हैं, सारे जितने भी आंसर्स हैं वो आपके जब सामने ही होते हैं तो यू आर द वन हु कैन क्रिएट अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। और फिर एक 360 डिग्री व्यू आता है जिसको हम कहते हैं लीडर्स का जो पर्सपेक्टिव है। आप लोगों ने एक इन्फिनिटी का एक सर्कल देखा होगा जिसमें हाफ ब्लैक है और हाफ व्हाइट है, एस्फीयर, जिसके बारे में कल बहुत डिस्कशन भी हो रहा था। वो जो इन्फिनिटी है उसके लिए यू डोंट हैव टू डू एन एफर्ट, वो एक आउटकम है। जब हम डीकोड कर लेते हैं उस सिस्टम को तो उसका जो आउटकम है दैट इज इन्फिनिटी, which I simply say the doors of abundance। और एक बार अगर वो डोर ऑफ अबंडेंस आपका खुल गया तो जितनी भी हमारी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सब सॉल्व हो जाते हैं। पर अगर मैं वो आपसे ये कहूंगा कि मेरा आंसर ये है और इस तरीके से मैंने जाना है, सो दैट विल बी माई एक्सपीरियंस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉलो माई एक्सपीरियंस, जस्ट लिसन टू मी, रिफ्लेक्ट व्हाट आई एम सेइंग, बट ऑलवेज लिसन ऑफ योर हार्ट। जो आपका हृदय बोलता है, जो आपका मन बोलता है, हमेशा उसकी सुनो, क्योंकि हो सकता है जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो आपका एक्सपीरियंस ना हो। सो इसलिए जब मुझे उस स्पेस से बोलना पड़ता है तो मैं बहुत डाइवर्स पर्सपेक्टिव लेके चलता हूँ। मैं किसी एक विचारधारा को लेके नहीं चलता। दैट थॉट लीडरशिप जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिसका मैं प्रयोग करता हूँ, उसका बहुत वास्ट होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि 1+1 आपके लिए भी 2 हो सकता है 1 और 1 आपके लिए 11 हो। और किसी ने तो एक बहुत सुंदर बात भी कही कि 1+1 वो 2 कैसे हो गया, वो 3 है। तो मैंने पूछा कि कैसे, तो वो बोलते बीच में जो प्लस लगा है वो भी तो है। तो इसलिए लाइफ को 360 डिग्री व्यू एक लीडर देख सकता है और उसके लिए एक विजनरी होना बहुत जरूरी है। एक विजन आपके पास हो, एक अच्छे थॉट्स हो, जिसको शंकराचार्य बोलते हैं अद्वैत फिलॉसफी में विचार औषधि ही।
जो विचार हैं, ये जो आपके ये औषधि हैं, दिस इज मेडिसिन। अगर आपके पास अच्छे विचार हैं, अच्छे लोग आपके सराउंडिंग्स में हैं, क्योंकि वही आपका भविष्य निर्मित करते हैं, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग योर बेटर फ्यूचर। अगर आपके पास वो सब है तो आप सक्षम हैं, आप प्राप्त हैं, और आप उस चीज को पाने के लिए पूरी तरह से सच्ची निष्ठा रखते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे जिस बात को आप आज चर्चा करें। Thank you so much once again, Shri Shivansh. So, as we say, inner reflection, Antarmukhi, Sada Sukhi. Great. Thank you so much, Shri Shivansh.